Hello. 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 Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello, Hi. Trika. Hello. Trika, hi, Big Hello, Fan. hello, Bhaiya. Hello भैया. Spencer. hello. Hello Hello. भैया. My God. Hello. अरे एक सेकंड. मैं कहाँ पे हूँ यार? मेरे को कुछ समझ सा नहीं आ रहा है. कुछ नहीं दिख रहा. Hello Nishchay sir, this is Shruti. It will be great if you can open your video. हाँ, I'm turning on my camera. Give me a minute. Yeah. Hi. Hello sir, good evening. How are you? I'm good. You do look very cool. Sorry. हाँ, अभी दिख रहा है ना सही से? हाँ जी, बिल्कुल. Hi. Okay, so let's begin then. हाँ, sure. Okay, so firstly, it's a pleasure that you are here today with us. अरे Really. thank you so much for having me. मेरे लिए it's like an honor वाली बात है. Thank you so much. I formally welcome you and all our participants to the second episode of Creators Central, an initiative by Equalizer Kolkata, where we call most famous content creators to learn from and shape our next generation of content creators. So, guys, our guest today is renowned on YouTube with more than 16 million subscribers across his channel. Mr. Nishchay Malhan, also known as Triggered Insan, is famous for his roasting and gaming videos, which is regularly featured on YouTube ka trending section. But beyond his numbers, his amicable nature and deep connection with his fan is the reason we have had an amazing response to this session. Everyone, today's session will be moderated by Mr. Abhimanyu. Hello, Abhimanyu, our media partner from Samachar. Hello, Samachar sir. is a knowledge platform. Okay, yeah, hello. So Samachar is a knowledge platform where they provide news matter through visual graphics of current affairs, history, trivia, and much more. Be sure to follow them on their social media handlers and also check Samachar app on Play Store for exciting quizzes, infotainment, and whatnot. Now, without any further ado, I hand over the session to Mr. Abhimanyu. Abhimanyu, please. Thank you so much, Shruti. Can you just turn on my video? Okay, good. You can turn on your video now. Hello, Mr. Nishchay. अरे यार सिर्फ निश्चय बोल लो. Mr. निश्चय. Hello, Mr. Okay, hello, Nishchay. It's Hi. a big warm welcome from Team Samachar, ISA Kolkata, and literally all of your fans from here. Thank you so much for having me. पहले तो. I mean, see, it could have been a lot more epic. Say if this was in live college, right? Like campus में sitting, we could have ordered something and so on. I guess फिर मैं नहीं आता. Okay, why so? अरे it's easy to sit at home and ऐसा Zoom call पे करना, लेकिन actual लोगों के सामने जाके करना मेरे बस की नहीं है. मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ. मतलब अभी आई हैव बिकम यूज्ड टू बीइंग लाइव ऐसा यूट्यूब चैनल पे भी, इसीलिए जूम कॉल पे लाइव आना इज ओके फॉर मी. पर एक्चुअल लोगों को देख के उनके सामने बात करना मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता. Like I can actually imagine. See, सब स्टूडेंट्स लाइक एक साल से ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में ही है.
I mean, now if they have to go in classes, actually, what? एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब जिनके अभी कॉलेजेस ही ऑनलाइन ही स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए तो आई वंडर यार, उनको पहले तो पता ही नहीं कि कॉलेज होता क्या है। वो स्कूल और कॉलेज के बीच का डिफरेंस नहीं उनको अभी पता ना, तो Definitely. कोई नहीं, चल जाएगा। बट एक्चुअल लोगों के सामने जाके बोलने में और ऑनलाइन बैठ के करने में बहुत फर्क है। Definitely, I agree. I'll come to that. I'll first ask you the the most basic question. Like first, so engineering से ही शुरू करना है. So, is this a era of engineers? Say, I'll tell you why. In news, entertainment, everywhere. Like if I just go at a place and shout, "Oh, engineer!" I guess at least 10 folks will there turn their heads, right? So, what exactly would you say about this phenomenon, as in the engineering one, and how, like, you have done engineering, right? So how has it actually pushed you or hindered you in your career? How has it shaped it? इंजीनियरिंग का मुझे क्या लगता है ना, सो इंजीनियरिंग बेसिकली टीचेस यू हाउ टू डू थिंग्स ऑन योर सेल्फ, क्योंकि फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स वगैरह में भी एक ये होता था कि आई हैड दिस कोर्स कॉल्ड ELD, एम्बेडेड लॉजिक डिजाइन। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के असाइनमेंट्स होते थे, मतलब हार्डेस्ट कोर्स था मेरे 4 साल का। एंड उसके असाइनमेंट्स खुद बनाने पड़ते थे। तुम कितना भी ऑनलाइन सर्च कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। तो खुद ही बनाना, जब असाइनमेंट खुद करना पड़ता था ना, तो वो हैबिट पड़ गई थी खुद से चीजें करने वाली। तो उस वजह से क्या हुआ कि व्हेन आई केम इन 3rd ईयर, तो अपने आप ही फिर एडिटिंग सीखने का मन हो गया। फिर सोचा चल वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो वो अपने आप ही चीजें करने वाली हैबिट की वजह से प्रोबेबली, हाँ, इट हेल्प मी आल्सो बिकम अ यूट्यूबर आज। एंड हाँ, सो I'd say engineering teaches you how to deal with things, how to do things. It also Yeah. makes you like learn how to work in a team, right? So एक रात पहले बैठ के असाइनमेंट बना रहे हैं. हाँ, सो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का जो वो था ना, कि आपको लाइक लास्ट मोमेंट वर्क आ जाता है। क्योंकि एक्चुअली में तो आई गेस सारे इंजीनियर्स रिलेट करेंगे कि लास्ट मोमेंट वर्क ही करते हैं हम। अगर हमें 1 महीना भी दे दोगे असाइनमेंट में, हमने 1 दिन पहले बैठ के ही करना है। सेम मेरे साथ वीडियोस में भी होता है। मेरे को 1 हफ्ते का टाइम होता है मेरे पास एक वीडियो बनाने का, बट मुझे पता है मैंने लास्ट डे पे, अगर मैंने सैटरडे पोस्ट करनी है, तो मैं थर्सडे फ्राइडे में बैठ के ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो एक लास्ट मोमेंट वाला काम करने वाली हैबिट, मतलब ये इंजीनियरिंग वेलेपन में बहुत कुछ करना सिखा देती है एक तरीके से। एक मीम के लिए बोलते हैं लोग कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। वो एक्चुअली सच भी है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के अलावा, पढ़ाई के अलावा सभी करने वाले हैं। And I thought it's a meme, but you were saying नहीं, ये सच होता है। like deadline inspiration बन जाती है, right? ट्रू, हाँ, एग्जैक्टली। Okay. So then how you got the just a rough idea, as in like, you know, from the engineering to coming here. So like, to put it like in this way, insan part to we know, I mean, how triggered insan became triggered, so to say. नहीं, मतलब ऐसा ट्रिगर्ड इंसान नेवर बिकेम ट्रिगर्ड। इट्स जस्ट दैट कि अभी निश्चय मल्हान जो है वो 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा है। इज लाइक के ओके, हो गया 3rd ईयर, खत्म हो गया, प्लेसमेंट हो गई 3rd ईयर के एंड में। अभी मेरी अच्छी खासी पैकेज लग रखी है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास भाई इतना टाइम है कॉलेज में बैठ के, अब मैं क्या करूं? क्योंकि क्लासेस भी मेरे कॉलेज में एटलीस्ट कंपलसरी नहीं थी। मेरे को IAS सर का नहीं पता, लेकिन मेरे कॉलेज में कंपलसरी नहीं होता था, एटलीस्ट फॉर 3rd और 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स। उस वक्त तो नहीं था, अब हो गया तो पता नहीं। तो फाइनल ईयर में क्योंकि क्लासेस कंपलसरी नहीं है, तो भाई अब क्यों जाऊं मैं? मेरी प्लेसमेंट भी हो रखी है, मेरी CGPA भी 8 है। आई डो नॉट हैव एनी रीजन टू गो टू क्लासेस। मैं ये नहीं कह रहा क्लासेस मत जाओ, सारी क्लासेस अटेंड किया करो। Note. गुड मैसेज, हाँ, ठीक है। yeah. बट मेरे पास अब मेरा मन नहीं करता था अब क्लास जाने का, क्योंकि मैंने 3 साल मेहनत कर ली। अब मेरे को नहीं जाना क्लास, तो मैं क्या करूं भाई? अब मैं वेलेपन में यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देख रहा हूँ। तभी मेरा एक सीनियर हुआ करता था, जो मेरे से ना 2 साल सीनियर होता था, ठीक है। व्हेन आई वाज इन 2nd ईयर, वो फाइनल ईयर में था। वो नहीं हुआ ग्रेजुएट। मैं 3rd ईयर में आया, वो फाइनल ईयर में था। मैं फाइनल ईयर में आया, वो तब भी फाइनल ईयर में था। तो क्या हुआ ना, वो मेरे रूम में आता था, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो मेरे रूम में आता था और मुझे वीडियोस वगैरह दिखाता था। ओ ये देख, बीबी की वाइन्स की वीडियो देख ले। तभी बीबी एंड कैरी हैड लाइक 5000 10,000 सब्स। तो उनके चैनल दिखाता था, अरे ये देख ले। लाइक अच्छा भाई, सही है, वीडियोस हैं। फिर उसके बाद ना वो एक गेमिंग लैपटॉप ले आया एक दिन, उस पे GTA खेल रहा है। मैंने कहा भाई यार ठीक है, तू गेम भी खेल रहा है। तो उसको गेम खेलते हुए देख के ना मेरे को भी चिल मच गई, मेरे को भी गेमिंग लैपटॉप चाहिए। तो मैंने घर पे ऐसा बोल के, मेरे को कोडिंग के लिए गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मैंने एक गेमिंग का लैपटॉप भी ले लिया, अब 1 लाख रुपए का। अभी लैपटॉप भी ले लिया, ये बंदा मेरे को यूट्यूब वीडियोस भी दिखा रहा है। मैंने सोचा यार मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस ही डाल लेता हूँ।
वेला ही है, क्या करेंगे और। तो मैंने उठा के गेमिंग की वीडियोस बनानी शुरू कर दी एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय लाइक यूट्यूब का जर्नी। तभी मैंने फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पे पोस्ट करी थी वो तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन उसके बाद आई रियलाइज के मीम्स वाले कल्चर वगैरह थोड़े से चल रहे हैं, तो वो सब मैंने ट्राई किया एंड वो ना क्या कहते हैं उस वक्त यूट्यूब क्योंकि थोड़ा सा अभी रिलेटिवली नया था, तो क्लिक बेट वाले टाइटल्स बहुत चलते थे। तो वो देहाती कॉमेडी वगैरह ना उन सब पे वीडियोस पे बहुत व्यूज आते थे, रोस्ट वगैरह करके उनके। तो मैंने उन पे पहले अपनी वीडियोस बनाई थी, लेकिन ऑब्वियसली नए चैनल पे व्यूज नहीं आते। फिर मैंने गेमिंग पे ही करा, फिर मैंने वापस रोस्टिंग गेमिंग ऐसा करता रहा। फिर अल्टीमेटली मेरी एक वीडियो आई गेस कोई मीम्स वाली थी, अरविंद केजरीवाल मीम्स थे, वो पहली वायरल हुई थी। 15,000 व्यूज आए थे। मैं घर पे आके बोला था अभी मैं बन गया यूट्यूबर। 15,000 व्यूज आ गए, अभी मैं यूट्यूबर बन गया। उस वक्त 15,000 व्यूज वाज टू मच। अभी आज नहीं लगता होगा, लेकिन तभी 15 के व्यूज तो ऐसा था, ओ माय गॉड मेरी पहली वीडियो 15 के व्यूज चली गई। मैंने कहा अरे आई लव यू ऑल, मैं नीचे जो कमेंट्स कर रहा हूँ ना सब देख रहा हूँ मैं तो you will have time for that, don't worry. ओके हाँ, तो बस फिर ऐसे ही मैंने लाइक करता रहा, कुछ ट्राई करता रहा। एक वीडियो वायरल हो गई, तभी मेरे को हो गया कि ओके मेरे को शायद मीम कंपाइलेशन वाली वीडियोस में डालूंगा, ये इस पे व्यूज आएंगे। तो मैंने वो डाली। फिर ढिंचक पूजा वाला टॉपिक वायरल हो गया, तो ढिंचक पूजा के मीम्स वगैरह बनाए, वो चल गए। फिर लोग कहते भाई कि तुम कब तक ये मीम्स ही करते रहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली मीम्स रेपिटेटिव होते जा रहे थे। तो लोगों ने बोला भाई अपनी आवाज वाली वीडियो डालो। तभी रोस्टिंग का कल्चर आ चुका था, बहुत सारे ये रोस्ट वगैरह वीडियोस बना रहे थे। मैंने बनाया, मैंने भी उन्हीं के तरीके से बनाने की कोशिश करी, बट मुझे पर्सनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा भाई दिस इज नॉट मी, आई एम डूइंग दिस ताकि मेरे व्यूज आ जाए, बट मैं हूं नहीं ऐसा, मैं ऐसे बोल नहीं सकता जैसे ये लोग बोलते हैं। पता नहीं as in people okay, so people have this general assumption कि if you want to roast you have to be rude, सामने वाले की बेइज्जती करना, उसको उसकी धज्जियां उड़ाना, ऐसा उस टाइप का, थोड़ी सी लैंग्वेज उस टाइप की होनी चाहिए तुम्हारी, थोड़ा सा you have to be aggressive या उस टाइप का। तो that was not me honestly, तो I could not do that। तो इसीलिए मैंने जब भी करा तो आई वाज लाइक मैं छोटी मोटी कमेंट्री वीडियोस ही कर लेता हूँ, किसी को गालियां देना, उसको सुनाना ये मेरे से होगा नहीं, तो मैं नॉर्मल अपना छोटी मोटी कमेंट्री वीडियोस कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी रोडीज आता था उस पे, एंड उस टाइप की छोटी छोटी ऐसी वीडियोस उठा के उन पे मैं कमेंट्री वीडियोस बनाने लग गया था। एंड तब तक मेरी जॉब वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। तो यूट्यूब वाज नेवर अ फुल टाइम थिंग फॉर मी, लेकिन वो धीरे धीरे हो गया फुल टाइम। So, like you said, how you don't exactly relate to this concept roasting में कहते हैं ना कि you just own the person, right? So Right. this, like इससे एक extension में ये भी चीज आता है कि हाँ, like everyone here has seen that your language is clean in your roasting. So like I have a question regarding this, that does keeping the script clean, so does it make it easier or difficult for you to make it humorous or family friendly in that line? How would you say about I that? think इसीलिए बैकलैश भी मिलता है मेरे को, because you cannot always make comedy out if you are very respectful। अगर तुम बहुत ही इज्जत के साथ किसी को ट्रीट कर रहे हो, people will think कि ये कौन सा रोस्ट हुआ है ना, क्योंकि if like अगर मैं किसी पे वीडियो बना रहा हूँ एंड आई people expect कि ये रोस्ट होने वाला है और मैं नहीं उसको डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बात कर पा रहा, तो some people be like ये कैसा रोस्ट है, जो कि होता है, बहुत ज्यादा होता है। like if I have like अगर 10 फैंस है तो 5 हेटर्स भी हैं उनमें जो ये बोलेंगे कि भाई ये कैसा टाइप का कंटेंट है। बट यार that is just me, that is me, I cannot be disrespectful। मैं किसी को ऐसा अबे तू ये है तू वो है उसकी लुक्स पे कमेंट करना, पहली बात तो मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी किया है, लेकिन अगर किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी पता चले कोई ढूंढ के ऐसी कोई वीडियो निकाल दे जिसमें मैंने किसी की लुक्स पे बोला हो, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कभी ना बोलूँ। पहले नहीं मैं सोचता था, पहले मैं मतलब वो तो ऑब्वियसली होता ही नहीं था मुझसे, अभी मेरे को सोचना भी पड़ता है अभी क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ गया ना, तो अभी मेरे को हर एक चीज सोच समझ के भी करनी पड़ती है कि बाई चांस भी गलती से भी मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि ओ भाई कुछ गलत निकल जाए मुझसे। हाँ, ओनली इन दीपक कलाल केस एज दे सेड। अब वो बंदा, अभी कोई बंदा अगर सामने से तुमको वो कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज लाइक तुम लोग बहुत बदसूरत हो, उसका एक जोक है कि तुम लोग बहुत बदसूरत हो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ही मेड दिस जोक एंड आई वाज लाइक
तभी मैंने पहली बार ऐसा बोला। मैं मतलब पहली बार क्या बोला, इस पॉइंट पे मेरे को लगता है यहाँ पे जब कोई सामने वाला तुम्हारी लुक्स पे बोल रहा है तो तुम भी बोल सकते हो। तो मैंने बोला अगर तू खुद ऐसा दिखता है तो तू दूसरों को कैसे बोल सकता है कि तुम लोग बदसूरत हो। तो वो एक जोक था, बट स्टिल मतलब मैं आई ट्राई कि किसी को कभी एटलीस्ट उसकी लुक्स के लिए या फिर इन सब चीजों के लिए, वेट के लिए, इन सब के लिए उसको ऐसा वो ना करा I mean, जाए। your way was more like you fight fire with fire, ऐसा था। हाँ ट्रू, आई वाज लाइक कि मैं नॉर्मल बोल लेता हूँ, हाँ भाई ठीक है ABCD ऐसा बोल दिया, मेरे को XYZ तक नहीं जाना, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। That is there. Okay, Yeah. so like in the beginning, like just initially you said ना कि अगर ये live college होता तो most probably you won't have come here, right? So I saw your interview with Radio City, I guess it was. So you said that a big part in giving up your internship was laziness, and you would spend like weekends just in bed all the time instead of say like weekend पे जाके party मार and all. And then you again just said कि you feel nervous talking to new people. So how much of an introvert are you? And like how much in a way YouTube allows you to achieve whatever you want in content even while being an introvert? सो एक्चुअली यूट्यूब करने का रियल रीजन यही था कि वन, मेरे को घर से बाहर जाके काम नहीं करना था। आई डिड नॉट वांट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों से मिलजुल के, बिकॉज दैट इज नॉट मी। मैं आई हैव बीन वेरी इंट्रोवर्टेड। अपने पीसी पे बैठो, गेम खेलो, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ, खुश रहो, उतने में अपना काम चल जाता। तो मेरे को था कि मे बी अगर मैं काम भी ऐसा करूं कि मैं घर पे बैठ के कर सकूं तो दैट विल गिव मी मोर हैप्पीनेस। प्लस मेरी सिस्टर शी स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग कॉलेज वाले टाइम में, तो उसने भी कभी जॉब करी नहीं। तो और पापा भी बिजनेस में थे, तो उन्होंने भी किसी के नीचे जॉब नहीं करी। तो मेरे को एक ऐसा चीज हो गया था जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई कि मैं भी कैसे कर रहा हूँ जॉब, ना मेरे पापा ने करी, मेरी सिस्टर को भी मैंने फ्रीलांसिंग करते हुए देखा। तो मुझे लगता था कि मैं भी शायद घर पे बैठ के कुछ कर सकूं। उसी रीजन से मैं यूट्यूब कभी भी क्विट नहीं करा। जॉब करते करते भी 1 साल, आई गेस 10 months जो मैंने काम करी है, 2 जॉब्स करी है, एक से तो मेरे को निकाल ही दिया था खैर। तो दूसरी जिसमें मैंने आई थिंक 6-7 महीने ढंग से काम करा वहां पे, तब भी यूट्यूब इसलिए नहीं क्विट करा क्योंकि मेरे को ये होता था कि ठीक है मतलब ये तो चल रहा है, ये तो मेरे को करना ही है, जॉब तो मेरे को करनी है, घर पे तो होता पैसा रहेगा। आएगा, ये तो करना ही है। एक खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, एक पैशन वाली चीज के लिए यूट्यूब वगैरह करते रहो, बस ऐसा था। Wow. So like that actually makes sense. So जैसे COVID का time था, तो I guess it wouldn't have made much difference in the content, right? Because फॉर मी इट डिड। अब ये एक थोड़ा सा फर्क ये पड़ा कि मैंने थोड़ा सा टू स्विच माय कंटेंट, आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स वगैरह, एंड मुझे ये हो गया था कि खुद को भी लाइक ताकि मैं घर पे बैठे बैठे बोर ना हो जाऊं। क्योंकि क्या होता था ना, कॉलेज वाले टाइम पे थोड़ा बहुत बाहर घूम लिए दोस्तों के साथ, कभी हफ्ते में 1 दिन तो बाहर चले जाता था। उसके बाद कोविड से पहले भी हफ्ते में 1 दिन तो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स से मिलने चले जाता था वीकेंड वगैरह पे, तो माइंड फ्रेश हो जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अभी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह भी सारे थोड़ा सा फैल गए हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्चुअली। तो इसलिए मैंने सोचा था कि टू कीप माई सेल्फ फ्रेश मैं शायद व्लॉग्स वगैरह कर लिया करूंगा, थोड़ा घूम फिर लूंगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। बट कोविड की वजह से वो व्लॉग वाला मेरा जो एक प्लान था वो कैंसिल हो गया थोड़ा। वो तो अभी रहेगा ही। So like that's the thing कि because ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि पहले के टाइम में लेट्स से व्हेन दिस होल YouTube वाला थिंग स्टार्टेड, तो AIB या SNG, so these like groups were more and more in the prevalence. अभी ऐसा हो रहा है कि we are seeing more individual YouTubers. creators, So yeah. what I mean like what you said, the introversion and like ऐसा, is that the only motive, like what's driving this trend, या इसमें और भी कुछ चीज रहेगा? अभी तो आई थिंक थोड़ा सा सीन खराब हो गया है। देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन अभी क्या हो गया है, लोग देखते हैं कि अच्छा ये बंदा घर पे बैठ के वीडियो बना रहा है, ही इज मेकिंग मनी, तो अरे ये भी मेरे लिए एक तरीका है, मे बी आई कैन ऑल्सो डू दिस। इस वजह से आई गेस अगर अभी आप आज के 15-year-olds वगैरह को देखोगे ना, किसी से भी पूछ लो, दे जस्ट वांट टू बी यूट्यूबर, सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है। like 14-14-year-olds, they want to be content creators क्योंकि obviously they watch people making videos, so they also feel interested in doing that. they are like अच्छा हम भी ये चीज करेंगे। and इसीलिए आजकल जितने भी थोड़े से नौजवान है हमारे देश के युवा, वो सभी को कंटेंट क्रिएटर्स बनना है, जिसकी वजह से आई थिंक
एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो थोड़ा सा ना यूट्यूब का इस वजह से क्या हो रहा है, एक वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हर कोई वही चीज करेगा, सबको वही करना है, तो उस चीज की वैल्यू कम होने लग जाती है. दैट्स वेरी ऑब्वियस. It's a double-edged sword, नहीं? Like content creators like you and say Carrie and all, so they are actually motivating people to make more and more content. True. But then them crowd more again. एग्जैक्टली यू नो, जितनी ज्यादा वो सप्लाई डिमांड वाला सिस्टम होता है ना, अब जितनी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी उसकी डिमांड उतनी कम होती जाएगी ना. सप्लाई कम होगी तभी डिमांड ज्यादा होती है. उस हिसाब से आई थिंक इट्स, क्योंकि एक ऐसा भी एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वाड़े छोड़ के, मतलब स्कूल वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब के पीछे भाग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने वैसे एक स्टोरी टाइम वीडियो के लिए रखा हुआ है जो मैं नेक्स्ट ही सोच रहा था, बट मैं एक उसका छोटा सा हिंट देता हूँ. तो देयर इज दिस स्कूल किड, वो अपने घर से भाग के मेरे घर पे आ गया एंड ही वाज लाइक मेरे को यूट्यूब करना है, मेरे पापा मेरे को यूट्यूब नहीं करने दे रहे. Oh my God. तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे पूछा कौन सी क्लास में है, मतलब मैं बताता हूँ, मैं ना जिम जा रहा था और जिम वाले टाइम पे मेरी क्लास होती है. सो मेरे जिम में यू हैव टू टेक टाइम, उस स्लॉट पे ही आपको जाना पड़ता है. तो मैं जा रहा था एंड वो लड़का मेरे को मिल गया वहां पे. तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ऐसे जा रहा हूँ. तो ही वाज लाइक हाँ आप हो आओ, मैं यहीं पे हूँ. मैंने कहा मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा. ही वाज लाइक नहीं आप हो आओ. मेरे को लगा ऐसे मजाक कर रहा है. मैं वापस आया, वो स्टिल देयर. एंड अभी वो बंदा रो रहा है कि मेरे घर वाले मेरे को यूट्यूब नहीं करने दे रहे. मैं हैरान हो गया. उसने आगे जो मेरे को बातें बताई, आई वाज लाइक तू पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले. माँ बाप कैसे मानेंगे यूट्यूब के लिए जब तक तू पढ़ाई नहीं पूरी करेगा. किड्स दीज डेज आर नॉट रियलाइजिंग कि स्टडीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ लिख लोगे, यूट्यूब उसके बाद भी चलता रहेगा, कर सकते हो आप जब टाइम आएगा. पेरेंट्स को आप अगर फोर्स कर दोगे कि मेरे को यूट्यूब करने दो, सारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे. मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं माने थे जब मेरे 30,000 सब्स थे, तब तक नहीं मानते थे. और Okay. अभी लोग नए चैनल्स जिनके स्टार्ट भी नहीं हुआ है, दे आर लाइक हमें यूट्यूब करना है. तो मैं कहता हूँ भाई पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, IAS बन ये लो. बोलो, देश आगे बढ़ो. हाँ एग्जैक्टली मतलब मैंने उसको फिर ये सजेशन दिया. मैंने कहा भाई तू पहले कॉलेज में तो आ जा. तू कॉलेज में आ जाएगा ना तो तेरे मम्मी पापा तेरे को रोकेंगे कैसे. कह रहे मेरा फोन छीन लिया उन्होंने. मैंने कहा तो कॉलेज में होगा तभी तो फोन देना पड़ेगा ना उनको, तभी तो फोन देना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे. तब बनाइयो वीडियोस. अगर 2 साल रुक के बना लेगा, अभी नहीं करेगा तो कुछ फर्क तो पड़ नहीं जाएगा. फिर समझा वो भी. पर अभी बीच में बहुत इस स्टोरी में ऐसी ऐसी बातें थी जो मैं स्टोरी टाइम वीडियो में ही सुनाऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा. Exactly, that's the thing. Spoiler. So ISER Kolkata, you can also show this clip to your college, right? They're saying पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो. देखो मेरा एक सजेशन सीरियसली सभी के लिए यही है कि इफ यू आर लाइक डूइंग योर पार्ट स्टडीज वाले फील्ड में ना, कि मतलब अगर तुमने पढ़ाई में अपना काम कर लिया है, उसके बाद तुम बेशक YouTube पे जितना मर्जी टाइम लगाओ, लेकिन अगर तुम पढ़ाई के एक्सपेंस पे YouTube को प्रेफरेंस दे रहे हो, दैट आई डोंट थिंक इज राइट. क्योंकि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर YouTube. So like you just mentioned कि you have an upcoming video regarding the story time, right? So abhi like I wanted to ask you about say the good, the bad and the ugly of YouTube. So like the last 2 parts of this, na? So उसके बारे में तो I guess recent video is quite of yours is quite good, which I last saw was number 9 on trending. Yeah, it was 7, 8, 9 कुछ ऐसा ही था. 3 like the recent video of 3 girlfriends, right? मतलब ये कहाँ से, ये क्या था, ये fake account है that Trigu with 3 hearts. अरे so मेरा Instagram पे ना क्या कहते हैं, जो फैन पेजेस बन रखे हैं उनमें जो सबसे पॉपुलर वाला फैन पेज है उसके कुछ 100 के फॉलोअर्स हैं. तो उन्होंने एक फोटो शेयर कर रखी कि ट्रिगू इज इन अ रिलेशनशिप. आई वाज लाइक हेलो. और मतलब शी डिड नॉट आस्क मी ऐसा कुछ, उसने सीधा पोस्ट कर दिया कि निश्चय इज इन अ रिलेशनशिप. ये देखो, ये उस लड़की का पोस्ट है, ये निश्चय का पोस्ट है, और ये निश्चय का प्राइवेट अकाउंट है. एंड आई एम लाइक मेरा प्राइवेट अकाउंट नहीं है ये. उस बंदे ने एक फेक पेज बना रखा है, हर एक डिटेल एग्जैक्टली उसने मेरी फोटोज इंस्टाग्राम से उठा के फेसबुक पे पोस्ट कर रखी है. फुल लोगों को ऐसे ही रिप्लाई करता है कि जैसे वही निश्चय है. ठीक है. एंड मतलब बड़ा फैन है, बिल्कुल पूरा ऑब्जर्व किया है. नहीं पूरा. और उसने ये इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक थर्ड फेक अकाउंट भी बना रखा है मेरी बहन का, और उससे भी कमेंट करवा दिया उन पोस्ट्स पे. अभी तो लोग कन्विंस हो गए ना यार कि हाँ मतलब सच्ची में है.
तो ये जो एक स्कैम वगैरह जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। स्कैम 2021 हद से ज्यादा स्कैम 2021 बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। एंड मेरे केस में मैंने खुद पर्सनली देखा है कि निश्चय मल्हान और ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान नाम का, हाँ एक ये अलग है क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान नाम का एक है अकाउंट। अब लाइव इंसान नाम से मैंने अलग नहीं बना रखा, ऑब्वियसली मेरे गेमिंग चैनल का नाम लाइव इंसान है। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान यूट्यूब पे अलग है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो एक ही रखता हूँ ना, इट्स जस्ट मी। तो मैंने निश्चय मल्हान रखना चाहिए था वैसे तो मेरे को नाम, लेकिन मैंने ट्रिगर्ड इंसान नाम ही रख लिया क्योंकि वो नेम थोड़ा सा मेरे को लगा ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो इसलिए मैंने रख लिया हर जगह पे ट्रिगर्ड इंसान ही। एग्जैक्टली, अब लाइक लोगों स्कूल ने में नहीं होता कि हाँ में कोई बच्चे का वो निकनेम है तो जब एक्चुअल नेम से बुलाए तो पीपल डोंट इवन रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम में। एग्जैक्टली तो अब लोगों ने उसमें भी भाई लाइव इंसान के अलग बना रखे हैं। अभी मेरे को लोगों हर किसी को जाके बताना पड़ता है कि अरे यार एक ही है ट्रिगर्ड इंसान निश्चय, लाइव इंसान का एक ही फेसबुक पेज है, एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। समझ ही नहीं आ रहा लोग रोज स्कैम कर रहे हैं यार, इतने इतने स्कैम। कितनों को बताए वो लोग, कितने खुशी भाभी ओपी स्पैम हो रहा है चैट में। See? खुशी भाभी ओपी। Oh God. But like you said about your fan groups, right? So everyone here on the video, they are very aware about your fan pages. So like even ISER ka Kolkata ka page, so I got to know that yesterday they literally got spammed, and the reason kya tha that they were demanding कि इस session का हमको link चाहिए. So ISER of course they will say कि we will give, ऐसा नहीं है कि बंद कर देंगे, right? But they kept them pestering, calls आए, messages आए, सब आए. So yes. हाँ एक चीज आई एम वेरी प्राउड ऑफ इसके, जो एक फैमिली बन गई है ना मतलब यूट्यूब की वजह से, वो बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ज्यादा। लाइक इतने सपोर्टिव है, इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा लव शो करते हैं ना। मतलब आई हैव सीन के ऑब्वियसली यू गेट बैड कमेंट्स एंड ऑल वगैरह वगैरह, तो कोई बैड कमेंट कर देता है और मतलब उसके नीचे पूरा ऐसा अटैक कर देता है उसको। Yes, कुछ उल्टा सीधा कमेंट है उसके नीचे 100 तो लाइक तुम्हारे फैंस के ही रहेंगे. How dare you say this? सही है। तो लाइक ये फैंस वाला तो देखा, एंड इट्स लाइक ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस वाला नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगा कि फॉलोइंग कितना है, कि दे आर जस्ट लाइक कि लिंक तो हमको अभी चाहिए, राइट? उसके लिए तो आई कैन जस्ट थैंक देम, थैंक यू सो मच यार। पर ऐसे भी मत किया करो, मिल जाता है लिंक, वेट कर लिया करो। मिल जाता है. ओके, सो देन वही जो YouTube का था, द गुड द बैड द अगली, सो एक उसके अंदर पार्ट एक ये भी आता है कि व्हाट अबाउट सेंसर्स. So if I'm not wrong, you got one strike from the ढिंचक पूजा का वीडियो किया था, and you got, so I guess स्ट्राइक पड़ी नहीं थी, शी फाइल्ड अ कंप्लेंट, आई डोंट नो वो मतलब ओरिजिनल कंप्लेंट उसी की तरफ से थी या फिर किसी ने फेक बन के फाइल कर रखी थी। लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब अभी क्या होता है, पहले तो अगर कंप्लेंट होती जब चैनल छोटा था तो सीधा डाल देता स्ट्राइक, लेकिन अभी थोड़ा सा चैनल क्योंकि 10 मिलियन प्लस हो गया है तो इसीलिए स्ट्राइक मारने से पहले रिव्यू कर लेता है कि एक्चुअली जेन्युइन स्ट्राइक है या नहीं। तो उन्होंने वो रिव्यू करा, दे वर लाइक नहीं इसमें कुछ गलत था नहीं। बट हाँ अगर सेंसर की बात करो ना तो अब पहले से बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। पहले मैं ना बहुत सारी बॉलीवुड वगैरह पे वीडियोस बनाता था, बहुत सारी, मतलब माय फेवरेट टॉपिक टू मेक वीडियोस ऑन वाज बॉलीवुड। कभी भी कुछ भी हो, बॉलीवुड के एक्शन सीन्स, उनके कुछ भी फालतू से सीन्स वगैरह, डांसेस, उन सब पे उठा के वीडियोस बनाने में मटेरियल बहुत है उसमें, बहुत मटेरियल है। लेकिन अभी नहीं मैं बना सकता वो, क्योंकि चैनल इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि वो चीज नोटिस हो जाती है इंस्टेंटली। वीडियो डालते ही 1 घंटे के अंदर अंदर क्लेम या स्ट्राइक आ जाता है। तो मेरी लास्ट बॉलीवुड वीडियो के साथ ऐसे हुआ, उसके बाद आई डिसाइडेड कि अभी बॉलीवुड पे कम ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यूट्यूब पे अभी अलाउ नहीं कर, अब मैं कर नहीं सकता, क्योंकि चैनल अगेन वही, चैनल का साइज इतना बड़ा हो गया है कि ज्यादा नजरें देख रही है तो वो बहुत जल्दी नोटिस हो जाता है। that is so true. So like इसी लाइन पे there is this thing कि see, don't worry, I'm not going to ask you कि which political party you support, but however I would actually ask your opinion on the increase of like a political shade in comedy, right? See, because roasting के बारे में what two things I have observed, especially in your case. So एक तो clean language वाला तो point था, the other is that this is such a radical form of comedy, yet it is very apolitical as far as I have seen. Because इंडिया के अंदर से जैसे कुणाल कामरा या जो रहता है, फॉरेन के अंदर से बिल मार, जॉन ओलिवर, ट्रेवर नोआ, इनका रहता है,
So दोनों side arguments है. Some say कि keep your art and that separate. Some say कि you are like a part of society, so this has to be there. So what's your take on this whole debate? That I would ask. मैं इसको ना अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. मेरा पॉलिटिकली भी अगर मैं सच्ची में बोलूं, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. ना मैं इस साइड कांग्रेस वाली साइड, ना बीजेपी वाली साइड, ना कोई थर्ड साइड. मुझे आई ऑनेस्टली डोंट केयर. सिर्फ जब इलेक्शन आ जाते हैं तो किसी को वोट करना होता है तो हाँ, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं जाके वोट कर देता हूँ. लेकिन आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. मुझे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. एंड ये चीज मैंने रियलाइज कर ली थी कि अपनी यूट्यूब वीडियो से भी मेरे को पॉलिटिक्स को दूर ही रखना है. कब करी थी? पहले तो वो जो अरविंद केजरीवाल मीम्स मैंने आपने बताया. नाउ अगर मैंने वो अरविंद केजरीवाल वाले मीम्स बनाए, दैट डज नॉट मीन कि मैं अरविंद केजरीवाल सर को ट्रोल कर रहा हूँ या फिर मैं कोई उनको हेट करता हूँ. वो मीम्स हैं, मैंने बनाया, पर उस पे कमेंट्स जैसे आए मेरे को समझ में आया कि अच्छा भाई, तू लोगों को लग रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को लाइक नहीं करता इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ. मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो सीन है नहीं. फिर मैंने एक बार बना दी, राहुल गांधी का कोई एक मीम है वो वाला, आलू डालो सोना निकलेगा. तो मैंने वो मीम यूज करा, उस पे कमेंट्स आ गए, राहुल सर को ट्रोल ना कर. आई वाज लाइक भाई मीम है. मैं थोड़ी ना उनको ट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ मीम लगाया मैंने वहां पे. बट मेरे को समझ में आया कि अच्छा, लोगों को लग रहा है अभी मैं राहुल सर को ट्रोल कर रहा हूँ. ऐसे मोदी जी का एक मीम यूज किया मैंने, तो कमेंट्स आ गए तू मोदी जी को ट्रोल कर रहा है. तो मेरे को समझ में आ गया कि तुम्हें अपनी यूट्यूब वीडियो में पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन दो चीजों को बहुत दूर रखना है, तभी हर कोई तुम्हारी वीडियो खुशी खुशी देख पाएगा. और मेरे को मैं खुद भी अगर पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं क्यों ही वैसी टाइप की चीजें भी अपनी वीडियो में दिखाऊं. तो इसलिए एक चीज तो ये है कि ताकि तुम्हारी वीडियो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, इसलिए पॉलिटिक्स और रिलीजन को दूर ही रखो अपनी वीडियो में. ये बहुत जल्दी सीख ली थी मैंने बात. और एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो कौन है यार, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ. आदित्यनाथ. तो योगी आदित्यनाथ के मीम्स जब वायरल नहीं होने शुरू हुए थे, वो नाम बदल रहे थे जब, तब उनके वो नाम चेंज करने वाले मीम्स हुए थे. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को आर्नोल्ड शिवाजी नगर कर दिया. मैंने वो एक वीडियो बनाई, वो वीडियो मेरी वायरल हो गई. सो इट वेंट, तभी मेरे आई गेस 200-300 के सब्स थे. तो दैट वीडियो हैड लाइक 70,000 व्यूज 3-4 घंटे में, जो कि उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा थे मेरे लिए. आई वाज लाइक भाई वीडियो वायरल हो गई, लेकिन उस पे कमेंट्स आ रहे हैं भाई तू योगी जी को ट्रोल मत कर, योगी जी को ट्रोल मत कर. I was like, अरे यार मैं तो सिर्फ मीम यूज किया था. So that was the last video, आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने बनाई होगी. उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया नहीं कि अब भी पॉलिटिक्स से भाई दूर ही रहना है अपने को, जितना ज्यादा रह सको. Not even memes, सिर्फ मोदी जी का वो वाह क्या सीन है एंड ऐसे वाले जो लाइंस है फेमस वाली, वो यूज कर लेता हूँ मैं. पर कुछ भी ऐसा मीम नहीं यूज करता मैं जिसमें कोई लाइक बंदा ट्रोल हो रहा हो. Yeah, this is the thing. नहीं, politicians like they give you a lot of lines, बस a single liners. जो तुरंत meme material उसमें बहुत strong है. हाँ, true. ये एक बढ़िया एक आजकल YouTube पे स्पैम चल रहा है. गाइस 0 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब 2 करवा दो. अरे लोग कमेंट्स में स्पैम कर रहे हैं. God, man. So like so that this lingo wala part, so we did talk earlier, and like how it's your family friendly. So this is very interesting that your family, I mean, they were not, I would say, this much supportive of like your YouTube career, so to say, but like now they are on YouTube, right? So I guess your mother has an account, sister has an account, I guess a brother has also account. So I mean that's a very cool fact for everyone to know. See, one thing I realized ना कि मतलब इफ यू आर मेकिंग दैट टाइप ऑफ वीडियोस, तो तुम्हारी जिसमें अगर तुम्हारी फैमिली आ रही है, और अकाउंट सबका होता है यूट्यूब पे, है ना, अकाउंट सबका होता है. फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस टुमारो एंड यू हैव फैमिली मेंबर्स, उनके भी अकाउंट्स होंगे, वीडियो को लाइक डिसलाइक करने के लिए उनके भी होंगे. सडनली दे डिसाइड कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ यंगर ब्रदर, जस्ट सेइंग, एंड उन्होंने यू आर मेकिंग वीडियोस, ही इज लाइक अरे यार ये वीडियोस बना रहा है, सही वीडियोस बना रहा है, अच्छा चलो एक काम करता हूँ मैं भी आज कुछ ऐसे ही बना के देख लेता हूँ. उसने ही मेक्स वन वीडियो जिसमें यू डू नथिंग, एंड उसने वो वीडियो बनाई एंड वो वीडियो पोस्ट कर दी. अभी आप उसको रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते. यू कैन नॉट स्टॉप हिम, मतलब वो उसकी मर्जी है, इट्स हिज लाइफ, राइट? एंड आपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करा, यू डिड नथिंग. पीपल स्टार्ट वाचिंग हिज वीडियोस and उसके बाद he gains followers and subscribers, and उसके बाद he is also like now in the big YouTubers वाली league.
दैट इज बिकॉज लोगों को उसका कंटेंट पसंद आया. मैंने ऑनेस्टली अगर मैं काउंट कर रहा था मिथपैट और मेरा सगा भाई अभिषेक दोनों में कंपेयर करूं तो आई हैव मेड मोर वीडियोस विद मिथपैट. मैं अभिषेक की शायद 10-15 वीडियोस में हूं, मिथपैट के साथ मैंने 20 वीडियोस बनाई है. नाउ मिथपैट इज नॉट माय कोई सगा भाई नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ आई मेट हिम ऑनलाइन, वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टुगेदर. हमारी ट्यूनिंग इतनी सही हो गई कि वी बिकेम फ्रेंड्स एंड इसलिए हम वीडियोस वगैरह डालने लग गए. अभी लोग मुझे बोलते हैं कि तूने अपने भाई बहन या फिर मम्मी को ऐसा वो करा, उनको यूट्यूबर्स बना दिया. आई नेवर प्रमोटेड देयर वीडियोस. मैंने प्रेरणा की वीडियोस, एक वीडियो में अपना प्रेरणा का, जब मेरे खुद के 50,000 सब्सक्राइबर्स थे तब सिर्फ एक बार प्रेरणा की वीडियो को शाउट दिया था. वीडियो को भी शाउट नहीं दिया था, तभी वो वाला चैनल मेरा और उसका साथ में था, वॉन्डरर सब वाला. हम उस पे साथ में वीडियोस बनाते थे, तो इसीलिए उसको एक बार शाउट दिया था 50K सब्स पे. उसके बाद मैंने ना अपने भाई के, ना अपनी बहन के, ना अपनी मम्मी के किसी चैनल को कभी शाउट नहीं दिया. वो अपने आप ग्रो हुए. तो मतलब हाँ, इट्स जस्ट दैट कि आज क्योंकि सबके पास यूट्यूब अकाउंट है, एवरीबॉडी कैन मेक वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है. तो या Like nice, yeah, but like independently, like almost your whole family is on YouTube. That's a very True. cool thing, right? बट आई नेवर प्रमोटेड देयर चैनल्स, लेट मी पुट इट आउट देयर. मैंने कभी भी अपने भाई के चैनल को प्रमोट नहीं किया, अपनी मम्मी के चैनल को प्रमोट नहीं किया. उनकी वीडियोस अब ऐसी हैं कि यार अगर वो फैमिली वाली वीडियोस बना रहे हैं घर पे बैठ के, तो अब मैं घर पे हूँ, मैं उनकी फैमिली का मेंबर हूँ, तो मैं क्या बोल दूं, मुझे मत डाल, मैं मेरी शक्ल ब्लर कर दे ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता ना. True, true. तो मैं ऑब्वियसली उनकी वीडियोस में फिर आ गया. गाइस डोंट स्पैम कमेंट्स में, स्पैम मत करो. It's no use, Nisha. It's okay. Yeah, cool with that. So, I have this one more question that, I would say कि ऐसा, like everyone is doing that, but we are seeing a lot of YouTubers. So, like they are sometimes diversifying कि YouTube के बाद में से कुछ content थोड़ा Netflix के साथ में कर रहे हैं या कहीं पे. So, do you see like doing that in future as a near time? नियर फ्यूचर क्या, मुझे आया भी था एक के लिए. Sure. I can't tell exactly किसका था, लेकिन मुझे आया भी था. बट अगेन माय पॉइंट स्टैंड्स के मैं बाहर जाके ऐसा वो वाला काम नहीं कर सकता. सो मेरा स्ट्रेट अवे इट वाज नो, क्योंकि मैं अपने घर पे अपने पीसी पे कैमरा रख के उसके सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ. मैं उतने में ही खुश हूँ. इससे ज्यादा मुझे नहीं करना और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है. सो मेरे लिए Totally, अभी तो like at the moment you're totally team YouTube, right? या अभी तो आई एम टीम यूट्यूब. बाकी वो आजकल और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स वगैरह आ रही हैं, यूट्यूब जैसी जो बोलती रहती है कि आके हमारे यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ये नेटफ्लिक्स वगैरह जैसा आपने हो गया उनके शो वगैरह के लिए, तो हाँ उसके लिए मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है ऑनेस्टली. एंड मैं नहीं, आई डोंट थिंक मैं जा भी सकता हूँ करने. So, final question from my side. So that is, see, I won't ask you give some like advice or say motivate karo for the future. But there is this thing ki, see, like if a person wants to start in the roasting or the YouTube content at this moment, so they have very like very much role models in front of them. Like you are there, say Carrie Minati there, BB and all they are there. So it's like from earlier times अभी काफी अच्छा है content में see, but at the same time you said कि वो over वाला भी problem रहता है कि crowding ज्यादा होता है. नहीं So what would you crowding is not a problem, but crowding में people start posting anything. क्या हो रहा है ना, कुछ लोग अभी रोस्टिंग को सोचते हैं हम किसी को भी फालतू बोल देंगे, किसी बड़े क्रिएटर को उठाएंगे एंड दे स्टार्ट सेइंग एनीथिंग, जिसमें 90% थिंग्स जो होती है ना डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं. आई हैव सीन सच वीडियोस, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं. सो उस वजह से क्या हो रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ना कि क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस सीन में आ रहे हैं, इस वजह से दे आर लाइक के इंस्टेंट व्यूज के लिए हम ये क्रिएटर है, इसको हम कुछ भी बोल देंगे एंड वील गेन पॉपुलैरिटी. उस टाइप की जो चीज हो रही है ना, दैट इज लाइक नॉट गुड आई थिंक. Yeah, that I agree on. But so like say there is an aspirant as a YouTube content creator and like they are actually having some ideas for content. So what would you say to them? Like not necessarily just motivating, but anything you want to say to them. I guess right now YouTube पे if you want to enter the YouTube scene, go for gaming content. Gaming में
मतलब अगर यू आर इतना सा भी इंटरेस्टेड इन गेमिंग ना, यूट्यूब इज promoting gaming content like crazy. And also shorts, you can start making shorts अभी जो YouTube पे आ रही हैं. So honestly I like short form वाला content, but मुझे पर्सनली लगता है कि शॉर्ट फॉर्म वाला कंटेंट विल सून टेक ओवर द कंटेंट दैट पीपल आर मेकिंग, बिकॉज जब ऑडियंस का स्पैन ही उतना छोटा सा रह जाएगा ना कि 10 से 15 सेकंड वाली वीडियो देखनी है तो कौन देगा 10-10 मिनट वाली वीडियोस. तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लगता है कि इतना भी यूट्यूब को शॉर्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट दे आर. एंड अभी तो दे हैव स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी आल्सो शॉर्ट्स कंटेंट के लिए. शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ. तो यूट्यूब हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड $100 million के अराउंड शॉर्ट्स कंटेंट को प्रमोट करने के लिए. सो जो क्रिएटर्स शॉर्ट्स बनाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स, उनको दे आर गिविंग मनी, अपनी तरफ से दे रहे हैं पैसे. तो इफ यू आर न्यू मतलब ट्राइंग टू एंटर द यूट्यूब सीन, गो फॉर शॉर्ट्स कंटेंट या फिर गो फॉर गेमिंग कंटेंट. रीजंस इन दोनों को यूट्यूब बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, प्लस इसकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. That's cool. And that's like really helpful for anyone out there to know. And gaming content में you will never get bored of gaming. यार you will like the type of content I make on Triggered इंसान वाला channel ना, I am pretty sure लोग मेरी 10 वीडियोस देख लेंगे बैक टू बैक, 11वीं वीडियो में they'll get bored of it. लेकिन गेमिंग में you can watch ऐसा 50 वीडियोस भी बैक टू बैक देखते जाओगे, हर में अलग गेम दिख रही है आपको, कभी GTA है, कभी माइनक्राफ्ट है, कभी PUBG है, कभी कोई और है. So you will never get bored of gaming. ये फैक्ट है. So इसीलिए I think gaming is the content to go for right at the moment, and इसीलिए मैं भी थोड़ा सा गेमिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ आजकल. True. And like most of like अपने एज वाले लोग तो like they are in gaming, right? Already Exactly. करते ही है इतना, right? प्लस मोबाइल गेमिंग भी इस वक्त, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल गेमिंग इज इजियर आल्सो. True. I guess अब तो PUBG भी शायद वापस आ रहा है, right? Battlegrounds. Yeah, Battleground, yes. That's cool there. Okay, so Shil, now we will open it for the audience. So anyone who wants to ask anything, so they just raise their hands. I guess there's a feature there, and their mics will be unmuted. Okay. हेलो हेलो. हेलो भैया, हेलो भैया. कैसे भाई? बढ़िया भैया. मेरा ना जूम कॉल फ्रीज हो गया है. आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे? हाँ, मैं आप तो दिख रहे हो. चलो फिर ठीक है. देखो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, हाँ अगर जी. आपने सही दिया ना तो मैं 150 रुपया देगा आपको. ओके ठीक है. ओके, तो मेरी क्वेश्चन है कि आपका मिथ पैट और आपके बीच में जो आपकी जो शादी वादी जो भी हो, तो मजाक है, बट आपके बीच में दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई? हमारे बीच में दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई? हमारे बीच में दोस्ती ऐसे स्टार्ट हुई कि मिथपैट के 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, उसको उसकी पहली ब्रांड डील मिली थी. एंड उसने मेरे को ईमेल करा था, तभी आई थिंक मेरे 3-4 लाख कुछ थे. तो उसने मेरे को ईमेल करके पूछा था कि ब्रो आई हैव दिस न्यू स्पॉन्सर, सो हाउ मच शुड आई चार्ज. तो मैंने उसको आई थिंक सजेस्ट किया होगा कि 50,000 सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज हैं, तो आई थिंक इतना यू शुड गेट मिनिमम. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड. उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब मेरे कुछ 1.5 मिलियन कुछ सब्स थे एंड उसके 200-300K के आसपास थे. तभी उसने मेरे को मैसेज किया था कि ब्रो रिमेंबर जब मेरे 50K थे, आई हैड ईमेल्ड यू एंड आस्क्ड यू कि ऐसा ऐसा कुछ है. अभी मेरे को एक और ब्रांड डील मिली है, लेकिन अभी व्यूज एंड सब्स बढ़ गए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अभी मेरे को कितना लेना चाहिए? तभी भी मैंने उसको बोला था कि इतने व्यूज के हिसाब से इतना मिलना चाहिए. तब उसका मेरे को सामने से रिवर्ट आया था कि थैंक यू सो मच, मतलब इतने यूट्यूबर से मैंने बात करी, कोई ऐसा रिप्लाई नहीं करता, यू रिप्लाइड इंस्टेंटली एंड ऐसा हेल्प किया, थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो मेरे अभी ना 500K पे मैं सोच रहा हूँ फेस रिवील करूँ. उससे पहले मैं ऐसी एक वीडियो बनाने वाला था. तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ वीडियो विद मी? आई वाज लाइक हाँ श्योर. तो फिर उसके बाद फिर हम डिस्कॉर्ड पे ऐड किया, फिर व्हाट्सएप पे ऐड किया, फिर हमारी दोस्ती हो गई थी. ओके, अभी आपको 150 रुपया मैं पेमेंट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में. ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब दूसरा ये बस लास्ट है कि क्या नाम है, आप अपनी जो ट्रिगर्ड आर्मी है उसको 2 वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे, कि मतलब कैसे हैं वो? बहुत प्यारे लोग. 3 वर्ड हो गए. ओके, ऐसे बोल दो एकदम कैमरे के सामने देके बोल दो आदि ओपी. ओके, आदि ओपी. क्यूटीज है यार ट्रिगर्ड आर्मी वाले सारे ही. ओके हो गया ना? आदि अच्छा गया, म्यूट हो गया. हेलो निश्चय भैया.
हेलो, ये कौन बोल रहा है? भाई मैं शंबर तो बोल रहा हूँ. शम्बरतो, भाई क्या मस्त नाम है यार. But actually, I am a big fan of yours, and my friend who is not in also good big fan. So sir, थैंक यू सो मच. मुझे आपसे ये पूछना है कि बचपन में आप जब स्टडीज करते थे तब हाँ कोई जी. आउटर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था तो आप उसको कैसे रिकवर करते थे? आउटर डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत थी, क्योंकि पहले तो बचपन में भाई खेलने का इतना कीड़ा था ना कि मुझे बस खेलने जाना है, मेरे को खेलने जाना है. दोपहर के मतलब घनी दोपहर में जब सन एकदम सर के ऊपर है, और मेरे ना नक्सीर फूटने की भी बहुत इशू होती थी, जब नाक से खून नहीं निकल जाता. सो आई हैड दोज इश्यूज, पर मेरे को खेलना होता था, इतना ज्यादा खेलने का कीड़ा होता था. तो तभी तो मेरा पढ़ाई का सिंपल होता था, मम्मी मेरे को जबरदस्ती पढ़ाती थी, डंडे मार मार के डांट डांट के पढ़ाती थी. उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक 6th 7th के बाद अपने आप ही खेलने में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ, और ऐसा हो गया कि अभी मुझे क्लास में टॉप करना है, क्योंकि मैं हमेशा लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 3 रैंक्स में ही रहता था. फर्स्ट सेकंड हमेशा लड़कियां ले जाती थी भाई, मैं बस यही एक जिंदगी में दुख था. 6th में कोई लड़की फर्स्ट आई तो मेरे को हो गया, मैं सेकंड आया, मेरे को हो गया भाई अभी तो मेरे को 7th में फर्स्ट आने ही आना है. 7th में उसके बाद मैं आया था, एक्चुअली फर्स्ट आया था. फिर उसके बाद 8th में मेरे को हो गया अब मैं फर्स्ट आया हूँ भाई 7th में, अभी तो मेरे को 8th में भी फर्स्ट आना है. तो फिर वही ऐसा एक खुद के अंदर टॉप 3 में रहने वाली जो एक वो क्या होती थी, इच्छा होती थी, एक डिजायर थी कि हाँ मेरे को भाई स्कूल में टॉप करना है. वो जब स्टेज पे बुला के ऐसा सम्मानित करते हैं, मुझे वो करना है, हेड बॉय बनना है मेरे को आगे चल के. तो वो उसकी वजह से अपने आप ही एक डिजायर आने लगी पढ़ने की. एंड प्लस मेरे को साइंस बहुत पसंद थी यार, मेरे को फिजिक्स से प्यार था टिल डेट. आई थिंक आई स्टिल से, बाकी कोई ऑफेंड होता है तो आई एम सॉरी, फिजिक्स इज द ओनली रियल सब्जेक्ट, बाकी सब नकली हैं. तो मुझे फिजिक्स से हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसीलिए मैं साइंस पढ़ता रहता था, इसीलिए बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ लेता था. मेरा सिर्फ वीक सब्जेक्ट जो था वो लैंग्वेजेस था. मैं हिंदी के एसेज और उन सब में हमेशा ही बेइज्जती करा के आता था, टीचर्स बहुत मेरे को डांटती थी. बाकी डिजायर अपने आप ही आ गई थी पढ़ने की कि फर्स्ट आना है बस. जैसे भाई और एक क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा बोर्ड्स एग्जाम्स है और ओके. इस समय अभी वैसे कोविड सिचुएशन, तो इस समय मतलब पढ़ने की ऐसे लॉकडाउन हो गया था तो पढ़ने की मन होता नहीं है, इसलिए कुछ एडवाइस देना चाहते हो क्या? हाँ, एक एडवाइस देता हूँ मैं. देखो पता है, कुछ भी काम करने का, फॉर एग्जाम्पल फॉर यू इट्स स्टडीज, फॉर मी इट्स मेकिंग वीडियोस, राइट. कभी मन करता है ना जब बंदा बहुत फ्रेश फील करता है. एंड मैंने एक चीज अपने पर्सनल केस में तो ये नोटिस करी है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, क्यों अब बेशक जिम्स वगैरह बंद हैं, जब भी मैं जिम जाता था मैं जिम से बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन वो थकने के बाद जो एक पूरे दिन फ्रेशनेस रहती थी, काम करने का मन करता था हमेशा. तो बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस वाला एक एडवाइस है, लेकिन स्टार्ट वर्किंग आउट. सुबह में शाम में जब मन करे आधा घंटा भी वर्कआउट कर लो भाई, दिमाग अपने आप फ्रेश होगा, खुद ही पढ़ने का मन करेगा. एंड बाकी यार अभी तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि कहीं बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, घर पे ही है, तो और ज्यादा टाइम है बल्कि पढ़ने के लिए. तो अभी तो आग लगा दो बोर्ड्स में. ठीक है भाई, वैसे आई लव योर वीडियोस एंड एक बार मेरा नाम शंपर्तो और मेरे दोस्त का नाम शंबरतो ओपी, और मेरे दोस्त का नाम शुभरूप, उसका भी ले लो. शुभरूप भी ओपी. थैंक्स भैया. अरे अरे. Just a small request. See, like there are a lot of people asking questions, so I would like request everyone asking the questions to limit to one question itself. Would be cool. Just so let's move on to the next person. Hello. Hello. हेलो. Hello. हेलो. Hello. हेलो. हाँ जी बोलिए. Hello. हाँ जी महक जी. Hi, भैया. हेलो भैया. That's so I'm talking to you. You're my favorite.
और थैंक यू सो मच महक, थैंक यू, अब एक बार कैमरा की तरफ देख के बोल सकते हो मैं थैंक यू सो मच महक, थैंक यू। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं तो हाँ बहुत जी। बड़ी fan हूँ, मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, ओके लेकिन कोई ऐसा फैन अभी कभी आपको मिला हो बाहर, जैसे कोई बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट होता है ना कि कोई फैन मीट हुआ हो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है? अभी जो मैं स्टोरी नहीं सुना रहा था, जो मैं कह रहा था जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वाला मेरे लिए सबसे क्रेजी मोमेंट है। लाइक मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा शॉक्ड था, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा डर रहा था, ऐसा कुछ हुआ है। सो वो मैं पक्का उस पे आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। सो I'll probably post that video coming एक वीक में। सो दैट फॉर मी वाज वेरी स्कैरी कि एक लड़का अपने घर से आ गया, घर ये बोल के कि मतलब घर से निकल गया, ही बेसिकली लेफ्ट हिज हाउस एंड ही केम टू माय हाउस एंड ही वाज लाइक मुझे यूट्यूबर बनना है पर मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। एंड आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, तू जाके तू घर छोड़ा है। तो वो बहुत ज्यादा कुछ था। At last I just wanted to say कि मेरे को ना ऐसे मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना था मेरे को, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कैसे बात करूंगी बिकॉज़ यू आर सच अ बिग क्रिएटर, लेकिन आज मैंने बात करी तो मुझे लग रहा है दैट आई कैन जॉइन द अरे डिस्कॉर्ड एंड मैं डिस्कॉर्ड पे जनरल चैट में ऑलमोस्ट हर वीक में 1-2 बार तो आते ही आता हूँ एक्टिव। बाय। बाय। Okay. Next participant. हेलो निश्चय भाई। हेलो भाई कृष्णा भाई। भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ यू भाई। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच टॉकिंग कृष्णा विद भाई। मी। अरे यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो भैया मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब आप जैसे कि आपके पेरेंट्स ने एक तरीके से कैसे आपको अंडरस्टूड करा कि आप यूट्यूब के लिए बने हो? नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। My parents did not understand, they did not support me in my early YouTube wala stages. My parents accepted me as a YouTuber after I hit 100k subscribers, क्योंकि मैं शिद्दत के साथ 10-11 महीने अपनी जॉब पे फोकस किया, साइड बाय साइड रात के एक बजे बैठ के वीडियोस बना रहा था। एंड तो वो भी खुश थे कि मैं जॉब कर रहा था बिकॉज दे वांटेड दैट, एंड मैं भी खुश था क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा था। लकीली फॉर मी, मैं बता रहा हूँ यूट्यूब इज वेरी लक बेस्ड। मतलब अगर 50% स्किल है, तुम्हारी मेहनत है, तो 50% इट इज लक, क्योंकि हर किसी के नहीं आते व्यूज, बहुत किस्मत वाली बात भी होती है। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरे जॉब के साथ साथ वो यूट्यूब वीडियोस जो मैं बना रहा था, इट स्टार्टेड गेटिंग व्यूज। एंड उसके बाद क्योंकि दैट बिकेम अ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, तो माई पेरेंट्स accepted me as a YouTuber. They were like कि ठीक है, तू जॉब से अगर ज्यादा कमा के दिखा देगा ना फ्रॉम दिस यूट्यूब वाला सीन, तो मतलब पहले तो they were like कि जितना जॉब से आ रहा है अगर इतना भी तूने कमा दिया इन द नेक्स्ट 3 months, क्योंकि जब मेरी जॉब छोड़ी मैंने तो they were like कि अब नई जॉब ढूंढ ले, या फिर अगर तू यूट्यूब पे ही करना चाहता है फोकस, क्योंकि 10 महीने से मैं कर रहा था मेहनत, तो अभी थोड़ा सा वो भी सपोर्टिव हो गए थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने बोला कि ले भाई टाइम ले ले, अपना यूट्यूब को दिखा दे, प्रूव इट कि इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम एंड देन यू कैन कंटिन्यू। एंड लकीली फॉर मी इट वर्कड आउट, एंड इसीलिए फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अगर तुम माँ बाप को खुश रखोगे, पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे नंबर लाके, जॉब वगैरह लेके, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो उनको दिखा दोगे, तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे जो तुम करना चाहते हो। दैट इज माई ऑनेस्ट सजेशन एंड ओपिनियन। थैंक यू भाई। Thank you so much. Next, one more participant. Hi, sir. Hello, Kashvi. Hello. Oh my God, I can't believe this. अरे hello कश्वी। Sir, मैं नाम सही actually, बोल रहा हूँ ना आपका? कश्वी। काशवी। काशवी, ओके सॉरी। कोई नहीं सर, सर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच काशवी। सर मैं आपके साथ एक फोटो ले लूँ प्लीज? हाँ जी ले लो। सर एक मिनट, कैमरा ऑन नहीं हो रहा मेरा। वो आई गेस परमिशन नहीं है। Yeah, hi. We cannot give you permission to turn on the camera. अभी से निश्चय सर का और होस्ट का ऑन है, so sorry, आप डायरेक्ट सवाल पूछ लीजिए प्लीज। सर
मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली जी। मेरे को YouTube वीडियोस बनाने का मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है, तो ओके अभी मैंने एक्चुअली शुरू नहीं किया है, मेरे काफी क्लासमेट्स ने शुरू कर लिया है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक कि मैं कंटेंट कहाँ से लूँ, मेरे को कोई कंटेंट नहीं मिलता, तो आप कुछ सजेस्ट कर दो। बिकम अ गर्ल गेमर, यू नो आजकल गर्ल्स इतना ज्यादा गेमिंग में जो तहलका मचा रही हैं, व्हाई नॉट बिकम दैट। अब तो वैसे भी बैटल ग्राउंड्स पबजी मोबाइल आने वाला है, बेस्ट, इससे तो अच्छा टाइम एक्चुअली हो। हाँ, मेरे को पबजी में इंटरेस्ट तो है, बट मैं माइनक्राफ्ट में भी बहुत है, बट मेरे को कोई माइनक्राफ्ट खेलना सिखाता नहीं है। अरे हाँ, सो मेक अ सीरीज ऑफ इट के व्हेन अ नूब गेमर ट्राइज माइनक्राफ्ट ऐसा करके, सो धीरे धीरे माइनक्राफ्ट एक वीडियो देखना कि कैसे पिकैक्स बनाते हैं, दैट्स इट। और पूरी वीडियो बस यही बनाना कि मैंने पिकैक्स बनानी सीखी, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 यू स्टार्ट ग्रोइंग, एंड वो जो तुम्हारी नूब से एक एक्चुअली डिसेंट माइनक्राफ्ट प्लेयर बनने की जो जर्नी है, उसी को कंटेंट बना दो, है ना। क्योंकि नूबनेस में भी कंटेंट है, ये चीज मैंने बहुत जल्दी रियलाइज करी। यू नो मैं पबजी जब खेलता था, मैं किल्स नहीं ले पाता, मैं बहुत आराम से जल्दी जाके मर जाता, लेकिन मैंने उस नूबनेस में ही कंटेंट बना दिया। मैंने कहा इस भाई, ये अगर सारे लोग 20-20 किल ले रहे हैं पर गेम, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई 20 किल ले रहा है, कोई तो है जो 0 पे मर रहा है, वो तो रिलेट करेगा मुझसे। समझ रहे हो? तो जिनको नहीं आती माइनक्राफ्ट, दे विल रिलेट विद यू के इसको भी नहीं आती, ये भी सीख रही है साथ साथ, so they will also learn with you. Oh, thank you so much, sir. Thank you. Okay, so this will be the final question. Then we will open the chat because we saw it was getting spammed in between. Okay. Now we will open it. So Hello. 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 Hello, Triggered Insan. Hello, Rishabh Jain. Hello, Triggered Insan. I am from Prayagraj. I am your biggest fan. Arey, thank you so much, bhai. Thank you so much. Can I ask you a question? Arey, for sure. Yes. For मतलब कि आप कितने घंटे मतलब वीडियोस बनाते हो और कितने घंटे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो? कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। मैं नहीं, मतलब आई थिंक दोपहर में 2-3 घंटे, फिर शाम में 2-3 घंटे मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, बाकी मैं अपना इस कमरे में ही रहता हूँ। एंड इसमें भी आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस ऑल द टाइम, मतलब रात के टाइम पे आई एम मोस्टली प्लेइंग खुद की गेम्स, डोटा एंड ऑल खेल रहा होता हूँ मैं चिल करने के लिए। और वीडियो मैं हफ्ते में 3-4 दिन वीडियोस बनाता हूँ, 1-2 दिन लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो आइड से वीडियोस रिकॉर्ड करने में मेरे को 4-5 घंटे लग जाते हैं, मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड करता हूँ इट टेक्स अराउंड 5 to 6 आवर्स तो मिनिमम। गेमिंग की वीडियोस बनाने के लिए 3-4 घंटे, और ट्रिगर्ड वाली वीडियो बनाने के लिए मिनिमम 6 घंटे, और फिर एडिट करने में लगता है असली टाइम 8-10-12 घंटे, इवन मोर समटाइम्स। Oh yes, I am your biggest fan. I can't believe that I am talking with you. अरे थैंक यू सो मच यार ऋषभ भाई। Yes. और चैट तो भागने लग गई एकदम से। Yes, exactly. Full on बिल्कुल उसमें। थोड़ा अटक रहा है भाई। The moment I opened the chat एकदम से अटक ही गया। डिस्कॉर्ड फ्रीज हो गया, आई एम सॉरी, जूम फ्रीज हो रखा है मेरा तो। फिर अब क्या? I guess I guess the host has been disconnected because itne message, I guess there's so many messages, his own Zoom has got hanged. So yeah, so I am from ISA Kolkata. I was part of the organizing committee, and so right now actually we thought that we'll take a few questions, but since it seems there's a lot of spam here, so I guess we can end the session right now, like the major part of the thing. We would like to first of all, we would like to thank everybody who attended, and right now we would ask Nishchay sir at the organizing team and so the Sumachar members to stay back, and rest we would ask everybody to leave. Thank you so much for attending, and it was great to have you here. Our host will be back up soon online, so yeah, in the meantime we ask Nishchay sir and the organizing team to stay behind. Rest we can only. Thank you.